Hello future doctors, welcome to NEET Ultimatum. We are working to achieve the dreams. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3। हम लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं एंड मैं आप लोगों से होप लगाए बैठी हूँ कि आप लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके होंगे एंड आप लोगों की तरफ से आप लोग और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। So with this hope, let's focus on our today's lecture. But before starting to our lecture, I want to rewind you. लेकिन आप लोग रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर माई FDs। आप लोगों को तो हर एकदम आप लोगों को टारगेट याद होना चाहिए। आप लोग जब उठे, आप लोगों की जब मॉर्निंग हो, जब आप लोग सो, हर दम आप लोगों को ये वाला आप लोगों को जो टारगेट है आप लोगों को याद होना मस्ट है। ठीक है, what is our target? NEET 2024. Yes or no? Please, louder. You don't have to feel shy. You don't have to fearful. You just express your love towards your NEET, towards your studies. That's it. Everyone will love you when you love your studies. So please focus here. With this, let's just start our lecture number 3rd. बट लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़े थे? हम डिफाइनिंग फीचर्स, हम फर्स्ट लिविंग के फीचर्स कंप्लीट करे थे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। हम देखे थे कि इन 4 फीचर्स में से सम वर डिफाइनिंग फीचर्स। डिफाइनिंग फीचर इन द सेंस जो फीचर्स हर लिविंग में प्रेजेंट होंगे एंड नॉन लिविंग में एब्सेंट होंगे, हम ऐसे फीचर्स को डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। ठीक है, देन ग्रोथ है। ग्रोथ वॉज नॉट कंसिडर्ड डिफाइनिंग फीचर। वाई? बिकॉज ग्रोथ वॉज नॉट कंसिडर्ड डिफाइनिंग फीचर। वाई? बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो लाइक माउंटेन्स, boulders, okay, and only some living organism grow. That is the reason we do not say that growth is a defining feature. The next is reproduction. Reproduction is biological process to produce young one of its own kind. हम sexual reproduction को main type consider करेंगे। Then देखिए, in lower organism we mainly see asexual reproduction and even some higher organism we do not find sexual reproduction, that is sexual reproduction is absent. Examples: mules, sterile worker bees and infertile human couples. That is the reason we say that reproduction is not defining feature, क्योंकि थोड़ा में sexual reproduction ही absent है and some lower organisms show mainly asexual. That is the reason we do not consider reproduction as a defining feature. Then the third feature was metabolism. Metabolism is sum of anabolism and catabolism, destructive, constructive and destructive respectively. Okay, then a group of metabolic reactions group of metabolic reactions were metabolism. Metabolic reaction require enzyme as catalyst, which are biological protein. So metabolism is seen in all living organism and is absent in non-living organism. That is why we consider metabolism as all defining feature of life form. And metabolic reactions are not a defining feature. Why? क्यों नहीं है metabolic reaction defining feature? क्योंकि they can be performed outside the cell also. इसीलिए हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिफाइनिंग कंसिडर नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, डेफिनेटली सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज our defining feature. The next comes is consciousness. Consciousness सिर्फ लिविंग में दिखेगा आपको, whether it's prokaryote, most complex eukaryote and non living में absent होगा. That is the reason consciousness is also defining feature of life forms. ठीक है, हमारा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट हो गया था। देन हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में व्हाट इज क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ प्रोसेस टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। देन व्हाई डू वी क्लासीफाई? टू मेक द स्टडी इजी, दैट इज द रीजन वी क्लासीफाई। देन द नेक्स्ट इज टैक्सॉन. टैक्सॉन it is a group, that is category with observable characteristics. So that is the reason dog, cat, Alsatian mammals, they all are taxon. इसीलिए हम इन सबको टैक्सॉन बोल रहे हैं, क्योंकि they are group with some observable characteristic. That is the reason we are calling them taxon. Then ma'am, what is taxa? Taxa is plural of taxon. Plural of taxon. ठीक है, what is taxonomy? It is a, yes please, कल ही हम लोग पढ़े थे। It is a process, yes, very good. It is a process, it is a branch of biology that deals with grouping of organism into suitable taxonomic categories. Very good. So as it is process, it will have steps, right? The first step is characterization, identification, classification and then goes nomenclature, the last one. So characterization. Characterization हम पढ़े थे कि characters को note करना है। ठीक है, हम कैरेक्टर्स को नोट करना है
एंड द नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। अगर आप अच्छे से कैरेक्टर्स को नोट करोगे देन आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। हम ये जो हमारे फीचर्स हैं हम और डिटेल में स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आप लोग आज के लेक्चर में भी विथ फुल फोकस माइंड बने रहिए सो दैट आप लोगों का लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए विथ फुल फोकस एंड विथ गुड अंडरस्टैंडिंग। आप अच्छे से एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ओके, देन फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है? स्टूडेंट्स को हर बार डाउट रहता है व्हाट इज स्पेसिमेन, वेदर इट इज़ प्लांट, एनिमल और लिविंग और डेड। सो देखिए स्पेसिमेन वो है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर प्लांट का पार्ट भी हो सकता है एंड एनिमल का पार्ट भी हो सकता है, ईदर लिविंग और डेड। चाहे वो लिविंग भी हो सकता है एंड डेड भी हो सकता है। हम विच इज़ इन द स्टडी, जिसको हम पढ़ रहे होंगे हम उसको क्या करेंगे? स्पेसिमेन कंसिडर करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या है? इट इज़ प्लांट, एनिमल, प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, एनिमल का पार्ट होता है, एनिमल का भी पार्ट हो सकता है, ईदर लिविंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड भी हो सकता है, विच इज़ अंडर स्टडी। क्यों हम लिविंग और डेड बोल रहे हैं? देखिए लिविंग हम बोटानिकल गार्डन में देखेंगे, जूस में देखेंगे, डेड हम किस में देखेंगे? हर्बेरियम में देखेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वी से दैट वेदर इट्स प्लांट, एनिमल। कभी कभी पूरा प्लांट नहीं मिलता, हमें प्लांट का पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, एनिमल पार्ट, ईदर लिविंग और डेड, विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको हम पढ़ रहे होंगे हम उसको स्पेसिमेन बोलेंगे, ठीक है। इज स्पेसिमेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब गुड स्पेसिमेन किसे कहेंगे हम? द स्पेसिमेन दैट होल्ड्स रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब रिप्रोडक्टिव फीचर्स क्या है? सपोज इफ ये प्लांट है आपका तो रूट्स क्या है? इट इज़ वेजिटेटिव फीचर्स। स्टेम क्या है? वेजिटेटिव फीचर्स। बट जो ये फ्रूट्स है, सीड्स है, फ्लावर्स है, दे ऑल आर रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ अ प्लांट। तो जो स्पेसिमेन में आपको फ्रूट्स दिखेंगे, सीड्स दिखेंगे या फिर फ्लावर एक्सेट्रा, जिसमें आपको रिप्रोडक्टिव फीचर्स दिखेंगे हम उसे गुड स्पेसिमेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसे स्पेसिमेन क्या है? प्लांट, एनिमल, प्लांट का पार्ट भी हो सकता है, एनिमल का पार्ट भी हो सकता है, ईदर लिविंग और डेड, विच इज़ अंडर स्टडी, जिसको हम पढ़ रहे होंगे हम उसको स्पेसिमेन कंसिडर करेंगे। गुड प्लांट स्पेसिमेन हम उसे बोलेंगे जिसमें रिप्रोडक्टिव फीचर्स होंगे। रिप्रोडक्टिव फीचर्स इन द सेंस जिसमें फ्रूट्स दिखे हुए या फिर सीड्स दिख सकते हैं, फिर फ्लावर्स दिख सकते हैं, दीज ऑल आर रिप्रोडक्टिव फीचर्स, हम उसको बोलेंगे गुड स्पेसिमेन, ठीक है। वेरी गुड। देन देखिए आज का हमारा लेक्चर का मेन टॉपिक दैट इज steps in taxonomy. Taxonomy itself is branch of biology that deals with ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सूटेबल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देखिए। फर्स्ट स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, देन हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते समय हम टैक्सोनॉमिक एड्स भी कंप्लीट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन के आइडेंटिफिकेशन पढ़ते पढ़ते ही हम टैक्सोनॉमिक एड्स, आइडेंटिफिकेशन में ही हम टैक्सोनॉमिक एड्स कंप्लीट करेंगे। क्लासिफिकेशन में आप लोगों को पढ़ाते इस समय टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंप्लीट कर दूंगी। देन गोस इज लास्ट स्टेप दैट इज नॉमेनक्लेचर। इससे क्या होगा? हमारा सारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आप लोगों को अच्छे से समझने भी आ जाएगा। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी दैट इज कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन मैम? कैरेक्टराइजेशन आप लोगों को फर्स्ट देखिए कैरेक्टर्स को नोट डाउन करने को ही हम कैरेक्टराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ टू नोट डाउन फीचर्स ऑफ स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन है उसके फीचर्स नोट डाउन करना है, बट इन सेमी टेक्निकल टर्म्स। ये मैम सेमी टेक्निकल टर्म्स क्या है? सेमी टेक्निकल टर्म्स में हम क्यों नोट डाउन करेंगे? क्योंकि आप सपोज हम ये डिसिप्लिन से, अगर कोई अदर डिसिप्लिन का साइंटिस्ट भी इफ़ दे वांट टू रीड आउट दैट, उन्हें उन अदर डिसिप्लिन के साइंटिस्ट को भी समझने आना चाहिए कि हम किस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सो सेमी टेक्निकल टर्म्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो हर साइंटिस्ट को, हर जनों को हर बॉटनिस्ट व्हाटएवर, सो अच्छे से उन लोगों को समझने आएगा। ऐसे टर्म्स जो यूज़ करेंगे हम वो यूनिवर्सल होंगे एंड सबको समझने आ सके। दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ दैम, वी कॉल देम सेमी टेक्निकल टर्म्स, ओके। पेंटामेरस, टेट्रामेरस, देखिए अगर आप सपोज एक फ्लावर है एंड उसके पेटल्स मल्टीपल ऑफ 5 में है देन वी विल कॉल इट एज पेंटामेरस। अगर 4 के मल्टीपल में है देन वी कॉल
टेट्रामेरस, 3 के मल्टीपल में है, ट्राइमेरस, सुपीरियर ओवरी है, देन इंफीरियर ओवरी है। तो ये सब क्या है, सेमी टेक्निकल टर्म्स है। ये सेमी टेक्निकल टर्म्स आप लोग मॉर्फोलॉजी में डीपली भी पढ़ोगे, आप लोगों को अब के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कैरेक्टराइजेशन, फर्स्ट कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना इन सेमी टेक्निकल टर्म्स, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टराइजेशन। अगर आप करेक्ट डिस्क्राइब करोगे प्लांट को, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू फॉर आइडेंटिफिकेशन, राइट। करेक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन इसका सही नहीं दोगे, अगर आप लोगों को कोई प्लांट मिला एंड आप उसको एनिमल में प्लेस कर दोगे, या फिर आप लोगों को एनिमल मिला आप लोग प्लांट में प्लेस कर दोगे, क्या आप लोगों को उसको आप करेक्ट आइडेंटिफाई कभी कर पाओगे? नहीं, कभी नहीं कर पाओगे आप। सो दैट इज़ द रीज़न करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज़ मस्ट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इससे हमारा फर्स्ट स्टेप दैट इज़ कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। हम कैरेक्टराइजेशन वर्ड से ही हम समझ सकते हैं, दैट इज़ कैरेक्टर्स को नोट डाउन करना इन सेमी टेक्निकल टर्म्स। करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज मस्ट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे जब आप डिस्क्राइब भी सही नहीं कर रहे हो? सो दैट इज़ द रीज़न वी से करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज मस्ट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। Okay, very good. Then our next step is identification. Identification आप लोग समझ सकते हो, आइडेंटिफाई करना, राइट। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन है एंड आप न्यू कोई स्पीशी डिस्कवर करे हो, देन आप ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन से उसको टैली करके आप उसको कंपेयर करके आप उसको अच्छे से इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। आइडेंटिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन। अब हम ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन इन द सेंस हम टैक्सोनॉमिक एड्स की बात करेंगे इसमें। सो वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स। अब आप बोलोगे मैम आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है, येस। फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन वी मस्ट हैव करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मैम वेरी गुड, वी हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। देन इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन। जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पेसिमेन है उसकी हेल्प से होगा, बोल रहे मैम, येस। आप बोल रहे हो कि इट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स, बट मैम टैक्सोनॉमिक एड्स ही नहीं पता है। व्हाट आर दिस टैक्सोनॉमिक एड्स? हम टैक्सॉन पढ़े, टैक्सा पढ़े, टैक्सोनॉमी पढ़े, देन व्हाट इज दिस टैक्सोनॉमिक एड्स? इट इज़ वेरी सिंपल। एड्स आप लोगों को पता है, एड्स हेल्प, यस, हेल्प, ओके, आप लोगों को इतना तो पता है। टैक्सोनॉमिक एड्स, एड्स मीन्स हेल्प। ऑल दोज मेथड्स, चाहे वो मेथड्स हो, मेथड्स लाइक XC2, IN-C2 लाइक दैट। देन स्टोर स्पेसिमेन, हम स्पेसिमेन स्टोर करते हैं म्यूजियम्स हो, चाहे वो जूस हो। लाइव स्पेसिमेन भी हम स्टोर करते हैं थोड़ा में। डेड स्पेसिमेन लाइक हर्बेरिया। पिक्चर्स हो या फिर रिटन डिटेल्स हो जैसे मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। ये सब चीज़ें जो मेथड्स हो या फिर स्टोर स्पेसिमेन, लाइव स्पेसिमेन, पिक्चर्स, रिटन डिटेल्स, चाहे वो कुछ भी हो, विच आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन, विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, दीज आर ऑल कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक एड्स। हम इन सब को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक एड्स बोलेंगे। अब यस मैम, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन इज मस्ट फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड वी यूज टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, टैक्सोनॉमिक एड्स आर ऑल दोज मेथड्स, स्टोर स्पेसिमेन, लाइव स्पेसिमेन, पिक्चर्स, रिटन डिटेल्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। जो आपको आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहे होंगे, हम इन सब को टैक्सोनॉमिक एड्स बोलेंगे, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड रिक्वायर्स लेबोरेटरी स्टडी, लैब में स्टडी करना पड़ेगा आप लोगों को, या फिर फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी इन द सेंस हम बोटानिकल गार्डन को भी टैक्सोनॉमिक एड कंसिडर करें, सो यहाँ पर आप लोगों को फील्ड स्टडी चाहिए होगी ना। सो दैट इज द रीजन इट रिक्वायर लेबोरेटरी स्टडी एंड फील्ड स्टडी। ओके, अवर सेकेंड स्टेप दैट इज आइडेंटिफिकेशन। इट इज डन with the help of already discovered specimen. We do this with the help of taxonomic aids. Taxonomic aids क्या है मैम? All those methods, stored specimen, live specimen, pictures, written details which helps in identification. These all are called as taxonomic aids. It requires laboratory study and field study. Okay, our first step characterization and next step identification is done. Okay, देखें यहाँ पर दिस ऑल आर टैक्सोनॉमिक एड्स। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, दिस 4 टैक्सोनॉमिक एड्स। आप लोगों के 4 टैक्सोनॉमिक एड्स में स्पेसिमेन दिखेंगे, राइट, वेदर दे विल बी डेड और लिविंग। जैसे कि आप लोगों को हर्बेरियम में डेड दिखेंगे, बोटानिकल गार्डन में लिविंग दिखेंगे, म्यूजियम में मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, जूलॉजिकल पार्क्स में आप लोगों को लिविंग दिखेंगे, ठीक है। देखिए
म्यूज़ियम में आप लोगों को डेड प्लांट्स भी दिख सकते हैं। आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को म्यूज़ियम का अच्छे से पढ़ाऊँगी एंड डेड तो दिखेंगे आप लोगों को। देखिए, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जोलॉजिकल पार्क्स, यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिमेन देखेंगे वेदर लिविंग और डेड, दोनों में से एक, या फिर डेड हो गए या फिर लिविंग हो गए। देखिए, ये जो 5th 6th 7th 8th 9th है अपना, दैट इज़ की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, दीज ऑल आर बुक्स, ये बुक्स के टाइप में होते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे ये रिटन डिटेल्स होते हैं, ये बुक्स टाइप है एंड इसमें रिटन डिटेल्स मिलेंगे हमें। सो टैक्सोनॉमिक 8 हम 9 टाइप्स के पढ़ेंगे, दैट इज़ हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जोलॉजिकल पार्क्स। इसमें स्पेसिमेन देखेंगे वेदर इट्स लिविंग और डेड। देन आप लोगों को जो 5 है, दैट इज़ की फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये आप लोगों को बुक्स की तरह होंगे एंड आप लोगों को इसमें रिटन डिटेल्स मिलेंगे। ओके, क्या आप लोगों को यहाँ तक टैक्सोनॉमी 8 समझने आया है या नहीं? प्लीज़, इफ़ आप लोगों को अच्छे से समझने आ चुका है, देन वी विल head on to our NCERT का part. Okay, now we will look to our NCERT. Taxonomic studies of various species of plants, animals and other organisms are useful. In agriculture में हमें useful होंगे, forestry में, industry में and in general in knowing our bioresources and their diversities. अब आप लोग मुझे बोलोगे कि कैसे एग्रीकल्चर में यूज़फुल होंगे, कैसे फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में एंड इन जनरल नोइंग देयर डाइवर्सिटी पहचानने में कैसे वो लोग यूज़फुल होंगे, वो आप लोग मुझे बोलोगे। ठीक है, दिस स्टडीज़ वुड require correct classification and identification of organism. Identification of organism requires intensive laboratory and field study, right? The collection of actual specimen of plant and animal species is essential. हमें actual उसके specimen collect करना is essential because it is prime source of taxonomic. यही तो source होता है taxonomic studies के लिए. And these are also fundamentals. तो अगर हम किसी को trainings दे रहे हैं, these are fundamentals for trainings in systematics. It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. Yes, जो उसके specimen के साथ उसकी जो information gather हुई होगी, वो दोनों specimen and information gathered लोग एक साथ store करेंगे. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Future studies के लिए हम कभी कभी specimen को फिर preserve भी कर देते हैं. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as specimen, right? Some of these explained here to understand the usage of these aids. तो हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? Usage, that is aids पढ़ने वाले हैं, that is taxonomic aids. Okay, first taxonomic aids, that is herbarium is here. But before looking to this slide, I want to explain you people this. Okay, ठीक है, herbarium. बट देखिए, herbarium that is our next slide में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट मैं आप लोग को जो अभी प्रेजेंट पढ़ा रही हूँ, जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, आप लोग वहाँ पर फोकस रखिए. अगर चाहे वो नेक्स्ट स्लाइड ही क्यों ना हो, आप लोग उसके बारे में मत सोचा करिए प्लीज़. आप लोगों को मैं जो करंट स्लाइड पढ़ा रही हूँ, आप लोग वहीं फोकस करिए एंड आप लोगों को अच्छे से समझना है. दैट इज़ माई एम. प्लीज़ फोकस हियर. देखिए, ये आप लोगों को हर्बेरियम शीट दिखेगी. दिस इज़ हर्बेरियम शीट. आप लोग हर कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को हर्बेरियम शीट्स पता ही होगी. अगर नहीं भी पता है, मैं आप लोगों को आगे आप लोग को मैं दिखाऊंगी भी हर्बेरियम शीट्स कैसे होती हैं. देखिए, ये है हर्बेरियम शीट. आप लोगों को यहाँ पर लोअर राइट हैंड साइड, दैट इज़ लोअर राइट हैंड साइड में आप लोगों को एक बॉक्स दिखेगा. हम ये बॉक्स को क्या बोलेंगे? लेबल. इस बॉक्स का नाम है लेबल. अब लेबल में आप लोगों को क्या दिखेंगे पता है? लेबल में आप लोगों को डिटेल्स दिखेंगी. किस डिटेल्स दिखेंगी मैम? मैं वो आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी. पहले आप लोग ये समझिए, ये है हर्बेरियम शीट्स, राइट. ये यहाँ पर आपको लोअर राइट हैंड साइड में लेबल दिखेगा. लेबल में आपको डिटेल्स मिलेंगी. दिस इज़ हर्बेरियम शीट्स. ओके, वेरी गुड. देखिए, ऐसी होती हैं हमारी हर्बेरियम शीट्स. ये आप लोगों को दिखेगा, ये वाला है लेबल एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ तो डिटेल्स दिख रही हैं एंड ये है हमारा स्पेसिमेन. ओके, यहाँ पर क्या है? आप लोगों को डेड प्लांट स्पेसिमेन दिखेगा. किसमें? हर्बेरियम शीट्स में. जो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊंगी. ये देखिए, आप लोगों को स्पेसिमेन है, ये है आप लोगों का लेबल, ये वाला है आप लोगों की हर्बेरियम शीट्स. देन आवर नेक्स्ट स्लाइड इज दिस. देखिए, फर्स्ट हम ये कंप्लीट कर लेंगे. पहले हर्बेरियम शीट्स तक हमारा हो गया था. देखिए, हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है? अब स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स.
स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स विद डेड प्लांट स्पेसिमेन, हम इसको बोलेंगे हर्बेरियम। देखिए ये है रहा हमारा हर्बेरियम विद दैट इज स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट, ये है हमारा हर्बेरियम, दिस इज हर्बेरियम, दिस इज हर्बेरियम, ओके वेरी गुड, दिस इज स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स, दैट इज दिस इज हर्बेरियम। एंड ये आप लोगों को दिखेंगे हर्बेरियम शीट्स, लेकिन ये क्या है, स्टोर हाउस है किसका, हर्बेरियम शीट है, ये जो रूम होगा या चाहे कुछ हो जिसमें आप हर्बेरियम शीट स्टोर करोगे, हम उसको हर्बेरियम बोलेंगे, ठीक है। अब ये आप लोगों को स्लाइड अच्छे से समझने आएगी। देखिए यहाँ पर हर्बेरियम दैट इज स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स विथ डेड, आप लोगों को क्या लिविंग प्लांट दिखेगा, नहीं, वहाँ आप लोगों को डेड प्लांट स्पेसिमेन चाहिए। अगर आप पेपर पे रख रहे हो स्पेसिमेन शीट्स, यस इट्स पेपर राइट, तो आप लोगों को क्या वो ड्राई होना ज़रूरी होगा, क्या आप वेट रख सकोगे पेपर पे, ऑब्वियसली नो राइट। तो देखिए शीट्स जो आप लोगों को हर्बेरियम पे स्पेसिमेन देखेंगे वो ड्राइड हो गए, हम उसको पहले ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, हम इसे कुछ लाइक बुक्स में या किसी चीज़ से हम उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद हम प्रिजर्व करेंगे, दैट इज DPP, दैट इज ड्राइड pressed and preserved, herbarium sheets are dried, pressed and preserved, ठीक है, वेरी गुड। एंड जो शीट्स है आप लोगों को बहुत सारे शीट्स दिखेंगे ऐसे, यू नो आप लोगों को 5 लाख 10 लाख कितने भी शीट्स मिल सकेंगे, क्या आप लोग उनको एवं अरेंज कर दोगे, नहीं, आप लोगों को कोई एक सिस्टम होना चाहिए शीट्स अरेंज करने के लिए, तो वो सिस्टम है दैट इज शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग शीट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। हर्बेरियम शीट्स दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व होते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से हम उन्हें अरेंज करेंगे, ठीक है। एंड डेड प्लांट स्पेसिमेन होंगे हर्बेरियम स्टोर हाउस ऑफ हर्बेरियम शीट्स, ठीक है। अब देखिए हर्बेरियम शीट्स में देखिए डिटेल्स आर प्रेजेंट इन लेबल, मैं आप लोगों को बताई थी ना लेबल किसके कहते हैं, लोअर राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। कौन से डिटेल्स प्रेजेंट होते हैं मैम, देखिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ डिटेल्स, प्लीज़ आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए, कौन से डिटेल्स मिलेंगे हमें लेबल में। इट कंटेन्स नेम ऑफ कलेक्शन, आप जिसे कलेक्ट कर रहे हो उसका नेम होगा, ऑब्वियसली जो आप प्लांट कलेक्ट कर रहे हो उसका नेम होगा, डेट ऑफ कलेक्शन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस डेट पे आपने कलेक्ट किया एंड क्या प्लेस पर आप कलेक्ट कर रहे हो वो आप लोगों को लेबल में मिलेगा, दैट इज नेम ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है। कॉमन नेम, हर प्लांट का कॉमन नेम होगा, इंग्लिश नेम एंड बॉटनिकल नेम दैट इज बोटानिकल नेम, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम एंड बोटानिकल नेम होगा लेबल में, एंड नेम ऑफ द फैमिली जो फैमिली से वो बिलोंग कर रहा होगा स्पेसिमेन, आप लोगों को उसके फैमिली के नेम भी दिखेगा। सो डिटेल्स दैट आर प्रेजेंट इन लेबल इज इट कंटेन्स नेम ऑफ कलेक्शन, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम एंड नेम ऑफ द फैमिली, इतने डिटेल्स आपको दिखेंगे लेबल विच आर प्रेजेंट लोअर राइट हैंड साइड इन द हर्बेरियम शीट्स, ठीक है। ये आप लोगों को समझने आ चुका होगा, दिस हर्बेरियम, ये है लेबल जिसमें आप लोगों को कितने डिटेल्स दिखेंगे, दैट इज नेम ऑफ कलेक्शन, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कॉमन नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम एंड नेम ऑफ द फैमिली, ठीक है। यहाँ पर ड्राइड, प्रेस, प्रिजर्व समझ गए आप लोग, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए हर्बेरियम को हम क्विक रेफरल के लिए यूज़ करते हैं, हम क्विक रेफर करने के लिए हम हर्बेरियम को यूज़ करेंगे, सो हर्बेरियम आर यूज फॉर क्विक रेफरल्स, ठीक है। आप लोग हर्बेरियम दैट इज फर्स्ट टैक्सोनॉमी की 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा हर्बेरियम शीट, देन दिस इज हर्बेरियम, देन कंसिस्ट ऑफ हर्बेरियम शीट दैट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। देन आई विल कंप्लीट NCERT एज वेल। देखिए हर्बेरियम, अब आप लोगों को देखिए NCERT आप लोगों के लिए आसान होती जाएगी अगर आप लोग क्लास को अच्छे से फोकस करके सुनोगे, ठीक है। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on sheets, okay. Further, these sheets are arranged according to universally accepted system of classification. These specimen along with the description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future use. Yes, repository हो जाएगा ना for future use. The herbarium sheets also carry label providing information about date, place of collection, English name, local name, botanical name, family, collector's name, etc. Herbaria also serve as quick referral systems in the taxonomical studies.
Okay, with this our first taxonomic aid, that is herbarium, is completely done. Now we will switch to that is second taxonomic aid, that is botanical garden. दिस इज़ बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन क्या होते हैं, देखिए बोटानिकल गार्डन इट इज़ ऑब्वियसली एक टैक्सोनॉमिक एड है, लेकिन आप लोगों को बोटानिकल गार्डन में क्या दिखेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था हर्बेरियम में आप लोगों को डेड प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे, देन बॉटैनिकल गार्डन में आप लोगों को लिविंग प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे. वहाँ पर आप लोगों को डेड प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे, लेकिन बोटैनिकल गार्डन एक गार्डन है. देखिए अगर आप लोगों को टाइगर को बचाना है, आप पूरा फॉरेस्ट बचाओगे, इसको आप इन सीटू कंजर्वेशन बोलोगे, राइट. अगर आप टाइगर को फॉरेस्ट से निकाल कर आप जू में उसको कंजर्व कर रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन. वैसे ही सिमिलरली फॉर प्लांट्स, अगर आप कोई प्लांट को कंजर्व करने के लिए आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में से निकाल के बोटानिकल गार्डन में रख रहे हो, देन इट इज़ एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट. सो यहाँ पर क्या होंगे, लिविंग प्लांट स्पेसिमेन होंगे ऑब्वियसली. वेरी गुड. देखिए ये इट बिलोंग्स टू बोटानिकल गार्डन, कैन बिलोंग्स टू यूनिवर्सिटी को बिलोंग कर सकता है, कॉलेजेस को बिलोंग कर सकता है, स्कूल्स को, एंड गवर्नमेंट कैन have बोटानिकल गार्डन्स. ठीक है, इट हेल्प्स टू कैरी आउट टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़. अब बोटानिकल गार्डन से हमें क्या हेल्प होती है, तो हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कैरी आउट कर सकते हो, एंड कंजर्वेशन ऑफ रेयर प्लांट स्पेसिमेन. यस, हम रेयर प्लांट स्पेसिमेन को हम कंजर्व कर सकते हैं. यस, दिस इज एक्स सीटू कंजर्वेशन में अभी जैसे आप लोगों को बोली. देखिए बोटानिकल गार्डन, देखिए रॉयल बोटानिकल गार्डन जो इंग्लैंड का सब में बड़ा वर्ल्ड्स नंबर 1 बोटानिकल गार्डन है, दैट इज़ RBG, दैट इज़ रॉयल बोटानिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड. देन NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है लखनऊ में. देन इंडियन बोटानिकल गार्डन, दैट इज़ हावड़ा. सो आप लोगों को लखनऊ से कुछ याद आ रहा है क्या, प्लीज़ आप लोग बोलिए. CDRI, मैं आप लोगों को क्ल्यू दे सकती हूँ, दैट इज़ CDRI. क्या आप लोगों को लखनऊ से CDRI हिंट है, क्या आप लोगों को कुछ तो याद आ रहा है, प्लीज़ अगर आप लोगों को याद आ रहा है प्लीज़ कमेंट मी डाउन. ओके, देखिए बोटानिकल गार्डन में जो आप लोगों को लिविंग प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे, उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, उसमें आप लोगों को दिखेगा बोटानिकल नेम एंड फैमिली. क्या दिखेगा आप लोगों को, बोटानिकल नेम. जो प्लांट होगा उसमें आप लोगों को यहाँ पर बोटानिकल नेम दिखेगा, एंड देखिए फैमिली का नेम दिखेगा. देखिए ये प्लांट है, यहाँ पर एक शीट होगी ऐसे शीट टाइप कुछ, आप जू में जाओगे तो भी आप लोग ऐसे देख पाओगे ना कि शीट्स के ऊपर उन लोगों के नेम, बोटानिकल नेम एंड फैमिली, कुछ उन लोगों के नेम एंड उन लोगों की फैमिली लिखी हुई रहती है. दैट इज़ दैट सिमिलरली यहाँ पर बोटानिकल गार्डन में भी आप लोग ट्रीज़ में जो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन है हमारे, उसमें बोटानिकल नेम एंड फैमिली देख पाओगे. सो अब बोटानिकल गार्डन्स में हमें दिखेंगे लिविंग प्लांट स्पेसिमेन, जिसमें आपको बोटानिकल नेम दिख सकेगा एंड फैमिली, and it belongs to the so and so, and it is useful to carry out taxonomic studies, conservation of rare plant specimen, ex situ conservation बोल रहे हैं हम इसीलिए. and Royal Botanical Garden, it is world's number 1. then National Botanical Research Institute लखनऊ, या आप लोगों से मैं क्वेश्चन करी जिसका मैं आंसर आप लोगों से होप कर रही हूँ. Indian Botanical Garden, हावड़ा. okay, so with this our botanical garden is done. let's see our NCERT also. ठीक है, botanical gardens, these specialized gardens have collection of living plants for reference. yes, we are we have living plant specimen for reference in botanical garden. ठीक है, plant species in these gardens are grown for identification purposes. yes, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name. yes, very good. and its family. क्या आप लोगों को हर चीज़ समझने आ रही है, प्लीज़ yes और no. आई एम एक्सपेक्टिंग सम yes और सम no. अगर आप लोगों को नहीं भी आ रहा है, इट्स ट्रूली फाइन, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करूँगी, बट डोंट हेसिटेट टू आंसर माई क्वेश्चन वेदर इट्स yes और no. प्लीज़ आंसर. इफ़ यू विल आंसर then I will get to know how can I improve in teaching you. please, because you are my new family, I must have an understanding of how you people are, so that I can teach you very good. okay, it's new to me and to you too, I am new, so please let's just have a good understanding of ourselves. आप लोग मुझे अच्छे से जानिए and मैं आप लोगों को, but our main target is studies, that is our NEET 2024. मैं बोलती हूँ कि enjoyment भी करिए, but studies is must. enjoyment करिए आप लोग. 24 hours में से आप लोग 1 to 2 hours enjoyment भी करोगे, it is okay,
बट आप लोग जो जितने आप लोगों के आवर्स रिमेनिंग है उसमें आप लोग अच्छे से विथ फोकस्ड माइंड आप लोग पढ़ोगे, देन जस्ट यू आर एट द आप लोग टॉप पे हो आप लोगों के, यू आर द पर्क, आई कैन से दैट, एंड you will become a favorite, I like the students who have that commitment कि हमारे मैम ये बोले मैं ये आज करूँगा. She said me that I will complete it. She said me to do this NCERT part questions, whether it's physics, biochemistry. I want commitment. Whether it's मैं नहीं चाहूँगी कि आप सिर्फ मेरे से पढ़ो, चाहे आप किसी से पढ़ो. I want results. I want result. That's it. Okay. With this, the famous botanical gardens are at Kew, England. Indian Botanical Garden, हौरा, इंडिया. नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया. ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेकेंड टैक्सोनॉमी के 8, दैट इज़ बोटानिकल गार्डन. ओके, देन नाउ कम्स इज म्यूजियम. ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा नाम सुने होंगे इसका, म्यूजियम्स का. देखिए, अब म्यूजियम्स को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि म्यूज़ियम में सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है. नो, देखिए, अब सिर्फ थोड़े कोई प्लांट्स है, मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि हर बेरियम में आप लोगों को डेड प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे, एंड बोटानिकल गार्डन पे आप लोगों को लिविंग प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे. यहाँ पर 2 कंप्लीट हो गए. लेकिन देखिए, थोड़े प्लांट्स ऐसे रहते हैं जिसमें से आप लोगों को ड्राई करना इम्पॉसिबल होता, जैसे कि एलो सक्यूलेंट प्लांट, जिसमें पानी भरे हुआ रहता, उसको आप लोग पानी निकालना टफ रहता, आप नहीं निकाल पाओगे. सो वैसे प्लांट्स को हम क्या करेंगे, वैसे डेड प्लांट्स को हम म्यूज़ियम में रखेंगे. डेड हो गए बट सक्लेंट्स, सो वी कैन प्लेस देम इन म्यूज़ियम. बोटानिकल गार्डन में तो हम लिविंग रख रहे, हम म्यूज़ियम में इसीलिए डेड प्लांट्स को रखेंगे. कैसे प्लांट्स होंगे वो, सक्लेंट्स लाइक एलो. एंड एनिमल स्पेसिमेन तो होंगे ही होंगे, आप लोगों को ये बात पता है. सो म्यूज़ियम, इट इज़ अ प्लेस वेयर डेड प्लांट्स, सक्लेंट्स लाइक एलो, जिसे हम पानी निकालना इट इज़ सम एक्चुअली अ डिफ़िकल्ट टास्क. हम ऐसे प्लांट्स को एंड एनिमल स्पेसिमेन को हम रखेंगे इस म्यूज़ियम में. म्यूज़ियम बिलोंग टू गवर्नमेंट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. ओके, ठीक है. आप बोल रहे हो मैम कि एनिमल्स को रखेंगे, प्लांट्स अगर डेड हो या सक्लेंट टाइप हो, वी कैन प्लेस देम इन म्यूज़ियम. लिविंग होंगे बोटानिकल में, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व. डेड प्लांट्स को हम हर्बेरियम शीट्स पे भी रख सकेंगे. ठीक है. देन मैम, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि म्यूज़ियम में हम प्लांट्स एनिमल स्पेसिमेन रखेंगे, बट हाउ आर द एनिमल्स केप्ट इन म्यूज़ियम. देखिए, अगर स्मॉल साइज एनिमल है, एनीवेज हम देखिए थोड़े स्मॉल साइज एनिमल होंगे लाइक इंसेक्ट्स या फिर फ्रॉग्स हो गए या फिर स्टारफिश हो गई, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड लाइक ब्लड, कोई तो लिक्विड प्रेजेंट होगा, तो हम वैसे एनिमल्स को, दे आर केप्ट इन ग्लास जार्स. उन लोगों को कैसा रखोगे पता है, ऐसे कोई तो ग्लास जार्स होते हैं ना, हम उसको ग्लास जार्स में रखेंगे उन लोगों को इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. इन प्रिजर्वेटिव, कोई प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस भी रहता है. प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस में ग्लास जार में हम स्मॉल साइज एनिमल इन विच सम लिक्विड इज प्रेजेंट लाइक ब्लड एटसेट्रा, दे आर केप्ट इन ग्लास जार इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. ये हो गया. फॉर एग्जांपल फ्रॉग भी हो सकता है इसका एग्जांपल, और स्टारफिश हो सकती है, एंड और क्या हो सकता है, फ्रॉग रह सकता है, स्टारफिश हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं एटसेट्रा. सो हम ऐसे एनिमल्स को जार्स में रखेंगे इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस. ओके, देन आवर नेक्स्ट ऑप्शन टू कीप एनिमल्स आर लार्ज साइज एनिमल्स. देखिए, लार्ज साइज एनिमल्स मेनली हम मैमल्स एंड बर्ड्स को ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स आप लोगों को लार्ज साइज, डायनासोर का आपको देख सकते हो क्या, नहीं. सो आप लोग मैमल्स एंड बर्ड्स को यहाँ पर मेन प्रेफरेंस दे रहे हैं लार्ज साइज एनिमल्स में. सो लार्ज साइज एनिमल्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स, दे आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. स्टफ्ड मीन्स उन लोगों को फर्स्ट खोखला करेंगे, उन लोग के अंदर का सब निकालेंगे, देन उन लोग को प्रिजर्व करेंगे. जैसे कि मैमल्स एंड बर्ड्स, लास्ट साइज एनिमल को हम पहले स्टफ करेंगे एंड देन प्रिजर्व, दैट इज उनके खोखला करेंगे, उनको सब अंदर से निकाल के हम उनको देन प्रिजर्व करेंगे. देन वो नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल साइज ड्राई एनिमल्स आर किल्ड. पहले उन्हें हम किल करेंगे, देन पिन करेंगे, पिन से लगा के हम उनको प्रिजर्व कर देंगे. हम ऐसे हम ऐसे प्रोजेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स बोलेंगे. इंसेक्ट बॉक्स, ओके, इंसेक्ट बॉक्स. देखिए, अब इंसेक्ट बॉक्स से लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, मैम व्हाट इज दिस इंसेक्ट बॉक्स. देखिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाई हूँ इंसेक्ट बॉक्स, आई मीन पिक्चर. ओके, ये देखिए, यहाँ ये है इंसेक्ट बॉक्स, हम इसे कहते हैं इंसेक्ट बॉक्स. ओके, दिस इज इंसेक्ट बॉक्स. यहाँ पर देखिए स्मॉल एनिमल्स है जो ड्राई है. फर्स्ट इन लोगों को किल करके इन लोगों को पिन कर दिया. देखिए, यहाँ पर इन लोगों को पिन कर दिया गया है, पिन एंड प्रिजर्व, दैट इज दे आर किल्ड, पिन्ड
एंड देन प्रिजर्व, एंड उन लोगों को प्रिजर्व कर दिया, एंड उन लोगों को प्रिजर्व कर दिया. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इंसेक्ट बॉक्स. हम इन्हें कहेंगे इंसेक्ट बॉक्स कहेंगे हम इसे. सो दिस इज इंसेक्ट बॉक्स. सो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो हाउ इंसेक्ट बॉक्स लुक लाइक्स. देखिए एंड यहाँ पर आ जाएंगे हम हमारे स्लाइड पर. देखिए स्मॉल साइज ड्राई एनिमल्स आर किल्ड, pinned and preserved in insect boxes. Okay, देखिए some animal skeleton are also preserved. थोड़े एनिमल्स के स्केलेटन भी हम प्रिजर्व करते हैं. यह बात आप लोगों को अच्छे से पता है. म्यूजियम में आप लोग देखते हो ना एनिमल स्केलेटन्स, डायनासोर्स के भी आप लोग देखते हो. तो some animal skeletons are also preserved. तो देखिए म्यूजियम क्या है, यहाँ पर डेड प्लांट्स भी रख सकते हो, प्लांट्स रख सकते हो, बट डेड प्लांट्स लाइक सक्यूलेंट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन तो आप देखते ही हो. इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. बट लेकिन एनिमल्स को कैसे रखा जाता है? अगर स्मॉल साइज एनिमल है जिसमें से कोई तो लिक्विड्स निकल रहे हैं, सो दे आर केप्ट इन ग्लास जार्स इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस. अगर लार्ज साइज एनिमल्स है लाइक मैमल्स, बर्ड्स, दे आर स्टफ, उन्हें खोखला करेंगे देन उनको प्रिजर्व करेंगे. स्मॉल साइज ड्राई एनिमल्स है, फर्स्ट दे आर किल्ड, पिन्ड एंड प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस. एंड थोड़े एनिमल्स के हम एनिमल्स के स्केलेटन भी हम प्रिजर्व करेंगे. सो दिस वर अबाउट म्यूजियम. नाउ लेट्स हेड ऑन टू एनसीईआरटी वाला पार्ट. ठीक है, देखिए ये है म्यूजियम. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. ठीक है, museums have collections of preserved plant. आप लोग biological museums आप लोग educational institutes such as schools and college, आप लोग यही लाइन पे ज़्यादा स्ट्रेस करिए. देखिए मैं वहाँ पर education institutes पे दी, लेकिन आप लोग क्या करिए बताएं, ये लाइन्स को आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस करके पढ़िए क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी डायरेक्ट अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल. बट देखिए आप लोग ये स्लाइड में देखिए, गवर्नमेंट, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी. कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज दे आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओनली. नो, सो देखिए दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट मैं आप लोगों की ईजी ईजी गेटिंग के लिए बोल रही थी. सो आप लोग कुछ भी कर सकते हो. देखिए म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, यस प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ओके, अब बोटानिकल गार्डन में देखे थे कि दे हैव लिविंग प्लांट स्पेसिमेन फॉर रेफरेंस, बट म्यूजियम हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. Specimens are preserved in the containers or jar in preservative solutions. Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimen. देखिए dry specimen. Then insects are preserved in insect boxes after collecting, killing, pinning. Okay. Larger animals like mammals and birds are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of skeletons of animals too. क्या आप लोगों को म्यूजियम तक अच्छे से समझने आ चुका है? क्या आप लोगों को हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स एंड देन म्यूजियम, क्या आप लोगों को कोई डाउट है इन सब टैक्सोनॉमिक एड्स में? सो लेट्स जस्ट हेड ऑन टू अवर फोर्थ टैक्सोनॉमिक एड, दैट इज zoological parks. zoological parks commonly called as zoo. ओके, जू हर कोई जानते हो आप लोग. मुझे इसको आप लोग zoological parks आप लोग हर कोई इंटरेस्ट से बैठे होंगे कि कब zoological park मैम पढ़ाएंगी हमें, क्योंकि हमें कुछ पता होता है. वी विल हैव मोर इंटरेस्ट ऑन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट दैट rather than knowing in what we don't know. ठीक है, आप लोगों की फेवरेट स्लाइड आ चुकी है. सो प्लीज़, चाहे वो आप लोगों की फेवरेट स्लाइड हो या ना हो, मैं चाहती हूँ आप लोगों की हर स्लाइड फेवरेट होती जाए. तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से फोकस से पढ़िए. आप लोगों की डैम श्योर हर स्लाइड, हर एनसीईआरटी का पेज, हर क्वेश्चन आप लोगों का फेवरेट होते जाएगा, बट इफ़ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज़, zoological parks, here live animals are preserved. yes, living animals दिखेंगे ना आप लोगों को zoological parks में. yes, एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर. आप लोगों को ह्यूमन केयर एंड प्रोडक्शन में एनिमल्स को लाया जाएगा. बट हमारा क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो लोगों का नेचुरल एनवायरनमेंट था उन लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट इक्वल टू नेचुरल, क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट देंगे अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन टू कंजर्व देम. सो इट इज़ टाइप ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन, येस और नो. अगर आप लोगों को टाइगर को सेव करना है एंड आप लोग अगर फॉरेस्ट को सेव कर लोगे, दैट इज़ इन2 कंजर्वेशन. बट अगर आप उसको फॉरेस्ट से निकाल कर जू में लाकर सेव करोगे, देन इट इज़ एक्स2 कंजर्वेशन. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. एंड यहाँ पर एनिमल्स को क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट उन लोगों के कंडीशंस दिए जाते हैं, बट अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन. ह्यूमन केयर के
ह्यूमन केयर करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करेंगे एंड क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोगों को यहाँ पर लिविंग एनिमल्स दिखेंगे एंड ये इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। लेकिन जोलॉजिकल पार्क्स का पर्पस क्या है, व्हाट दे हेल्प इन। देखिए जोलॉजिकल पार्क्स हम जाते, टूरिज्म इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा, जो हम जाते हम घूमते एनिमल्स को देखते, बट दैट इज़ नॉट द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाई वी एस्टैब्लिश जूस। देखिए इट हेल्प्स इन स्टडिंग बिहेवियर। आप लोग एनिमल को वहाँ पर जूस में रख के एनिमल का बिहेवियर पढ़ोगे, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी कर पाओगे एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल, एनिमल के बिहेवियर एंड एनिमल के हैबिट्स को आप स्टडी कर पाओगे। सो दैट इज़ द रीज़न द मेन पर्पस ऑफ जोलॉजिकल पार्क्स होल्ड्स। तो देखिए जूस आप लोगों को समझने आ चुके होंगे। हियर लिविंग एनिमल्स आप लोगों को दिखेंगे। आप लोगों को लिविंग प्लांट्स कहाँ पर दिखोगे एवडीज? यस, बोटानिकल गार्डन में मैम। देन आप लोगों को लिविंग एनिमल्स कहाँ दिखेंगे? जूस में। देन हम पढ़े थे कि डेड प्लांट्स कहाँ पर दिखेंगे आप लोगों को? हर्बेरियम में। डेड प्लांट्स लाइक सक्यूलेंट्स आप लोगों को कहाँ दिखेंगे? म्यूजियम्स में भी हमें दिखेंगे मैम, ठीक है। देन जूस में हमें लिविंग एनिमल्स दिखेंगे। एनिमल्स को हम अंडर ह्यूमन केयर एंड प्रोटेक्शन क्लोज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करेंगे। इट हेल्प्स इन स्टडिंग बिहेवियर एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। टूरिज्म इज समथिंग, टूरिज्म भी कैरी आउट होता है बट दैट इज़ नॉट द मेन पर्पस। then it is a type of ex-situ conservation, but yes we totally enjoy tourism, yes or no? आप लोग टूरिज्म enjoy करते हो या नहीं? क्या आप लोग जू गए हो? दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जू गए हो क्या कभी? इफ़ आप लोग जू गए हो देन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या आप लोग को कैसा लगा? हाउ कैन यू रिलेट योर लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर विद दैट जू? क्या आप लोग कुछ तो रिकॉल कर पाए हो? सो प्लीज़ से मी, ठीक है। देन हमारा एनसीईआरटी का पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये है आ गया हमारा जोलॉजिकल पार्क्स। यस, योर फेवरेट पिक्चर्स, फेवरेट पेज इन एनसीईआरटी। ओके, वेरी गुड। जोलॉजिकल पार्क्स, these are the places where wild animals are kept under protected environments under human care, which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats. Children love visiting these parks, commonly called as zoos. Okay, is it? क्या आप लोगों को समझने आ चुका है ये? Whether you people have any doubt in the 4 taxonomic aids we have studied till now, this herbarium. herbarium में क्या आप लोगों को डेड प्लांट्स दिखेंगे या लिविंग प्लांट दिखेंगे? प्लीज़ बोलिए। यस, डेड प्लांट स्पेसिमेन। देन बोटानिकल गार्डन में आप लोगों को लिविंग प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे। देन म्यूजियम में आप लोगों को दिखेंगे प्लांट्स भी दिखेंगे, आप लोगों को एनिमल्स भी दिखेंगे, ठीक है। एंड देन आप लोगों को देखिए जोलॉजिकल पार्क्स में आप लोगों को दिखेंगे लिविंग एनिमल स्पेसिमेन, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 4 टैक्सोनॉमिकल एड, जिसमें हम स्पेसिमेन देखेंगे वेदर दे वर लिविंग और डेड। नाउ वी विल फोकस ऑन आवर अदर टैक्सोनॉमिकल एड्स जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग इज़ की। तो देखिए मैं आप लोगों को की शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी। देखिए ये है हमारा, देखिए दिस इज़ की। ये आप लोगों को एक स्टेटमेंट दिख रहा है, ये है हमारा दूसरा स्टेटमेंट। ये आप लोगों को देखिए की में हमें क्या दिखेंगे? की, इट इज़ अ सिंपल नेम, ठीक है। की में हमें 2 स्टेटमेंट दिखेंगे, ये है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। मैं आप लोगों को एक कंडीशन दे रही हूँ। देखिए आप लोगों को मैंने एक फ्लावर दिया है, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ होल्ड दिस फ्लावर। अब मैंने आप लोगों को फ्लावर ला के प्रैक्टिकली दे दिया है एंड आप लोगों को उसके पेटल्स मल्टीपल ऑफ 4 में दिख रहा है आप लोगों को। दैट इज टेट्रामेरस आप लोगों को क्या दिख रहा है? पेटल्स दिख रहा है। टेट्रामेरस आप लोगों को पेटल्स। ओके आई एम सेइंग द आंसर माई सेल्फ, आई एम सॉरी। ओके देखिए मैं आप लोगों को क्या करी, एफडीज प्लीज़ होल्ड दिस फ्लावर। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली फ्लावर ला के दे दी एंड मैं आप लोगों को फ्लावर के फ्लावर बेस्ड ऑन फ्लावर आई विल गिव यू 2 सेंटेंसेस। सो आप लोगों को उसमें से एक को चूज़ करना है। दैट इज, देखिए कितना सिंपल है। मैं आप लोगों को फ्लावर दी, आप लोगों को फ्लावर में कितने पेटल्स हैं? ठीक है, चलिए आप लोगों को 5 के मल्टीपल में आप लोगों को 5 के मल्टीपल में आपको आप लोगों को पेटल्स दिख रहे, ठीक है। देन आप लोगों का स्टेटमेंट 1 है कि देखिए फ्लावर के बेस पे में आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट की का देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज फ्लावर इज पेंटामेरस।
देन फ्लावर इज ट्राइमेरस। क्या आप लोग दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर करोगे? आप लोगों को मैं फ्लावर दे चुकी हूँ, 5 के मल्टीपल में पेटल्स है। देन आप लोग को स्टेटमेंट 1 एंड 2 में से कौन सा स्टेटमेंट कंसिडर करोगे? विच स्टेटमेंट विल यू कंसिडर फर्स्ट एज अ करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द टू? देखिए दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, दोनों एक दूसरे से अलग है, यस। देन दोनों में से आप लोगों को एक को सेलेक्ट करना होगा। अगर आप लोग पेंटामेरस सेलेक्ट, यस मैम हम पेंटामेरस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ठीक है। अगर आप लोग पेंटामेरस को सेलेक्ट कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली आप लोग जो हमारा ट्राइमेरस है उसको रिजेक्ट कर रहे हो। सो इन की वी हैव टू स्टेटमेंट, दे बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। देन आप लोग इसमें से एक को सेलेक्ट करना होगा एंड एक को रिजेक्ट करना होगा। देखिए एंड यहाँ पर देखिए इतना तो आप लोग ये पार्ट समझने आ चुका होगा, मे बी, ओके ठीक है। आप लोगों को नहीं भी समझने आया है, इट्स ओके, मैं आप लोगों को फिर से समझाना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक एक्चुअली आई कैन से। देखिए आप लोगों को मैं फ्लावर दे चुकी हूँ, ठीक है, आप लोग बोल चुके हैं, आप लोगों को ये वाला पार्ट समझने आ चुका है। दिस इज़ पेंटामेरस, फ्लावर इज़ पेंटामेरस, फ्लावर इज़ पेंटामेरस। आप लोगों का फर्स्ट स्टेटमेंट हो चुका है। देन फ्लावर इज़ ट्राइमेरस आप लोगों का अनदर स्टेटमेंट हो चुका है, ठीक है। देन आप लोगों को 5 के मल्टीपल में पेटल्स है फ्लावर के, तो आप लोगों को कौन सा वाला स्टेटमेंट पे कौन सा वाला स्टेटमेंट आप लोग एक्सेप्ट करोगे एंड कौन सा वाला स्टेटमेंट आप लोग रिजेक्ट करोगे अमॉन्ग द टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट विच आर गिवन इन अ की? यस मैम, वी विल सेलेक्ट फ्लावर इज पेंटामेरस, ठीक है। आप लोग ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिए एंड देन वी रिजेक्ट द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज ट्राइमेरस, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ आ चुका है। एंड देखिए जो पेंटामेरस एंड ट्राइमेरस जो दो स्टेटमेंट्स है दे आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर और नॉट? यस मैम, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग, दोनों एक दूसरे से अलग है, कॉन्ट्रास्टिंग है एक दूसरे के लिए, ठीक है। दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, ओके। देन देखिए ये पार्ट आप लोगों को समझने आ चुका है एंड हमें की में दिखेगा। देखिए यहाँ पर यू कैन सी गो टू टू, दैट इज गो टू सेकेंड वन। ये क्या बता रहा है हमें? ये बता रहा है कि गो टू टू। अब हमें क्या, हम कहाँ जाना चाहिए? इफ़ इट्स शोइंग गो टू टू देन वी हैव टू गो टू टू। अगर हम टू में भी, अब सपोज और यू नो सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, अब आप लोगों की सुपीरियर ओवरी है सपोज, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। देन यहाँ पर है इन्फीरियर ओवरी, ओके देखिए सुपीरियर ओवरी हो गया, इन्फीरियर ओवरी हो गया। सपोज मैं आप लोगों को ऐसा यू नो एग्जाम्पल दी जिसमें आप लोगों को सुपीरियर ओवरी दिखेगी, तो आप लोग क्या करोगे? सपोज दिस इज ब्रिंजॉल, क्या आप लोगों को ब्रिंजॉल में सुपीरियर ओवरी दिखेगी या इन्फीरियर ओवरी दिखेगी? प्लीज़, ठीक है, ब्रिंजॉल को आप लोग हटा दो। देखिए चाइना रोज, चाइना रोज दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आई कैन से। चाइना रोज में आप लोगों को सुपीरियर ओवरी दिखेगी या इन्फीरियर? यस मैम, सुपीरियर ओवरी दिखेगी। देन आप लोग दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करोगे? सुपीरियर ओवरी को हम एक्सेप्ट करेंगे, इन्फीरियर ओवरी को हम रिजेक्ट करेंगे। दे बोथ वर कंट्रास्टिंग टू ईच अदर एंड each key consists of two statement, they both were contrasting to each other, we will accept one and reject another। ये तो आप लोग समझ गए हो। एंड आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट में बताया गया था गो टू टू एंड यहाँ पर आप लोगों को गो टू 3 बताया गया है। अब आप लोग 3 पे जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पे भी आप लोग ऐसे ही कोई स्टेटमेंट्स हो गए, लेकिन ये एंड होगा टैग्स ऑन, फॉर एग्जाम्पल डॉग पे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एंड हो किस पे, कोई फॉलोइंग्स पे, या फिर एक एंड होगा टैग्स ऑन पे। सो देखिए इसको बोलते हैं हम की। अगर आप लोगों को ये समझना आया तो हम जो मैं आप लोगों को आगे पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को वो भी समझने आएगा। बट देखिए ये है एक स्टेटमेंट, ये वाला है एक स्टेटमेंट इन अ की एंड ये वाला है एक स्टेटमेंट इन अ की, यस और नो? ये दो क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट है। बट ये ईच स्टेटमेंट इन अ की, हम इसको क्या बोलेंगे? लीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीड, क्योंकि ये आगे लीड कर रहा है ना, दैट इज़ द रीज़न वी आर कॉलिंग इट एज लीड। बट ये जो दो स्टेटमेंट्स है हम इसे बोलेंगे कपलेट। व्हाट वी विल कॉल दिस टू स्टेटमेंट्स इन अ की? दैट इज़ कपलेट, ओके। देखिए एंड आप लोगों को मैं यहाँ पर ये भी समझाना चाहती हूँ कि देखिए फर्स्ट दिस इज लेट, दिस इज लेट एंड दिस इज कपलेट, दिस इज कपलेट, ओके। यह की यहाँ पर आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स दिखेंगे। ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड एज लीड, दे बोथ आर कॉल्ड एज कपलेट, दे बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट वन एंड रिजेक्ट अनदर। ये आप लोगों को समझने आ चुका है। एंड देखिए अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ एफडीज, क्या ये दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग है या नहीं? येस मैम, दे बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर, कॉन्ट्रास्टिंग इन नेचर, दे बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग, दैट इज इन लोग डिफर कर रहे, राइट, दैट इज डिसिमिलैरिटीज दिखेंगे हमें किस में?
वेट अ मिनट, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। देखिए हमें क्या दिखेंगे यहाँ पर, डिसिमिलैरिटीज़, दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग। क्या ये सिमिलैरिटीज बेस्ड है? नो मैम, डिसिमिलैरिटीज बेस्ड है। कौन से? ई स्टेटमेंट ने की। अब ये जो है दे आर सेइंग अस टू गो ऑन टू, बट यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हमें सिमिलैरिटीज दिख सकती है, राइट? दे आर सिमिलैरिटीज, दैट इज रीजन दे आर सेइंग अस टू गो ऑन टू। सो हमें क्या दिख रही है, सिमिलैरिटीज। सो कीज आर बेस्ड ऑन डिसिमिलैरिटीज यहाँ दोनों के बीच में, एंड सिमिलैरिटीज इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। सो देखिए मैं आप लोगों को मेरे जिसमें चीज़ में डाउट रहता है, मैं फर्स्ट आप लोगों को इसीलिए ये पढ़ा दी क्योंकि आप लोगों को जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड है वो अच्छे से समझने आए। ठीक है, देखिए की टैक्सोनॉमी की हैव स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स होंगे इसमें। स्टेटमेंट्स आर इन पेयर नोन एज कपलेट, ठीक है, आर इन पेयर नोन एज कपलेट, ठीक है, हम ये भी समझ चुके हैं पीछे, राइट? इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज लीड, हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को लीड बोलेंगे। टू लीड ऑफ वन कपलेट, जो टू लीड्स है, देखिए वेट अ सेकेंड, ये जो टू लीड्स ऑफ वन कपलेट आर कॉन्ट्रास्टिंग, इसका मतलब देखिए आप लोग, इसका मतलब जानिए। टू लीड्स, ये एक लीड है, ये एक लीड है, बट वन कपलेट की है। टू लीड्स ऑफ वन कपलेट आर कॉन्ट्रास्टिंग, यस और नो? टू लीड्स ऑफ वन कपलेट आर contrasting in nature, yes, then so we accept one and reject another. Each lead goes on to another couplet, या फिर देखिए each lead, आप लोगों को each lead goes on to another, यहाँ पर देखिए आप लोग ये another couplet पे जा रही है, that is they are going to two. Each lead in a couplet can go on to the another couplet पे जा सकती है। then या फिर दे कैन एंड ऑन टैग्स ऑन, व्हाट दे कैन डू, दे कैन एंड ऑन टैग्स ऑन, यहाँ पर शायद प्रिंट टाइप मिस्टेक हो गई, दे कैन एंड ऑन वेट अ सेकेंड, एंड ऑन टैग्स ऑन, ओके। सो ईच लीड कैन गो ऑन टू अनदर कपलेट। शायद आप लोगों को हर चीज़ अब अच्छे से समझने आ रही होगी, मे बी। अगर नहीं आ रही है प्लीज़ आप लोग मुझसे एक बार क्वेश्चन करिए, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड द अदर दे कैन एंड ऑन टैग्स ऑन, ठीक है। कीज इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू दिस, ठीक है। अब देखिए कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, वाई दे आर एनालिटिकल, क्योंकि हम हर पॉइंट पे अच्छे से एनालिसिस करनी होगी हमें। देखिए एक कपलेट में हमें जानना होगा कि विच इज़ करेक्ट, हमें एक तो एक्सेप्ट करना होगा, एक रिजेक्ट करना होगा, देन वी हैव टू गो टू द अनदर कपलेट और इट विल एंड ऑन टैग्स ऑन। तो हमें हर पॉइंट पे अच्छे से एनालिसिस करनी होगी। दैट इज द रीजन वी से दैट कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, इसका मतलब ये है, ठीक है। ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी, अब सपोज डॉग है, डॉग विल हैव इट्स ओन की, मतलब हर एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो, चाहे वो डॉग, कैट, इंसेक्ट्स, तो दे विल हैव देयर रेस्पेक्टिव कीज। सो ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी विल हैव डिफरेंट कीज। सो आप लोगों की शायद टैक्सोनॉमी की में भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ आप लोग बोलिए कितने परसेंट आप लोगों को आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए, एंड आप लोगों को कितने अंडरस्टैंडिंग, आप लोग कितना श्योर हुए, ठीक है। देखिए की टैक्सोनॉमी की हैव स्टेटमेंट्स, यस स्टेटमेंट्स होंगे, यस और नो? Statements are in pair known as couplet, yes. Individual statements are known as lead, yes. Two lead of one couplet are contrasting, yes or no? Please बोलिए। So we accept one and reject another, ठीक है। Each lead goes on to another couplet or ends on tags on, ठीक है। Keys is based on similarity and dissimilarity, yes or no? Yes ma'am. Then देखिए keys are analytical in nature. Each taxonomy category have different key. So with this we have completed our taxonomic 8, that is key, जो written details में first वाला taxonomic 8 था हमारा। then देखिए then second is flora। आप लोग flora, ये फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज रहते बच्चे, छोटा सा पैरा है बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देता। देखिए एंड क्वेश्चन भी गलत करके आने के चांसेस रहते। देखिए आप लोग अच्छे से समझोगे, हर क्वेश्चन अच्छा जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फ्लोरा, व्हाट इज़ फ्लोरा? देखिए डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ एन एरिया, एक एरिया में आप लोगों को सपोज एक स्टेट है,
स्टेट में आप लोगों को एक स्टेट में कौन से एरिया में आप लोगों को कौन से प्लांट्स दिख रहे हैं, उसका इंडेक्स, ये एरिया में आप लोगों को ये प्लांट दिख रहा है, उसका सब इंडेक्स बनाना, उसकी एक लिस्टिंग करना प्लांट्स की, प्लांट स्पेसिमेन की, हम इसको फ्लोरा बोलेंगे। एंड ये हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, ये एक हैबिटेट में, ये हैबिटेट में हमें कौन सा प्लांट दिख रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक एरिया वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्ट्स में ये वाला प्लांट दिख रहा है, वो पार्ट्स में वो वाला प्लांट दिख रहा है, दैट इज द रीजन वी से हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्लोरा क्या है, डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन के डिटेल्स होंगे ऑफ एन एरिया, बट ये क्या है, एरिया बेस्ड है, उसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें मैटर करेगा। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेक्स, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन होंगे, प्लांट स्पेसिमेन के नेम्स होंगे, एक बुक है पहले तो फ्लोरा, इट्स अ टाइप ऑफ बुक जिसमें आपको क्या दिखेंगे, प्लांट स्पेसिमेन दिखेंगे, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को दिखेगा एरिया वाइज। एंड ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेक्स, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन है, दैट इज द रीजन वी कॉल इट, दिस इज व्हाट इज फ्लोरा। एंड नेक्स्ट इज मैनुअल्स। ठीक है, व्हाट इज दिस मैनुअल्स, मैनुअल्स मोर डिटेल, आप लोगों को मैनुअल्स में क्या है, मोर डिटेल दिखेंगे देन फ्लोरा। फ्लोरा में तो हम पढ़े अभी कि दे हैव डिटेल्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन ऑफ एन एरिया, वो एरिया वाइज है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, एंड वो एक इंडेक्स टाइप है। लेकिन मैनुअल्स में क्या है, थोड़ा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती फ्लोरा से, मोर डिटेल्स देन फ्लोरा, इट इज़ ऑल्सो एरिया वाइज। मैनुअल्स भी आपको एरिया वाइज दिखेंगे, आप लोग जब NCERT पढ़ोगे आप लोगों को ये एक पॉइंट अच्छे से समझने आएगा। ओके ठीक है, देखिए मैनुअल्स भी इसमें ज़्यादा डिटेल्स होंगे फ्लोरा से, एंड ये एरिया वाइज है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन, हम इसको आइडेंटिफिकेशन में यूज़ करेंगे किसी को, मैनुअल्स को। ठीक है, फ्लोरा कंप्लीट हो गया हमारा, मैनुअल्स कंप्लीट हो गया, एंड द नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। हम मोनोग्राफ को देखते ही बोल सकते हैं मोनो मीन्स वन, ओके मोनो वन। तो यहाँ पे क्या होगी, डिटेल ऑफ वन टैक्सॉन, ओके एक टैक्सॉन के हमें डिटेल मिलेंगे। ठीक है, अब सपोज मैमल्स है, मैमल्स में हम आएंगे कैट्स आएंगी, चीतास, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखेगा, एक टैक्सॉन मैमल के आप लोग सब डिटेल्स मिल जाएगी एक बुक में, वो बुक है मोनोग्राफ। सो मोनोग्राफ में आपको क्या दिखेगा, डिटेल्स ऑफ वन टैक्सॉन, एक टैक्सॉन के आपको पूरी डिटेल चाहिए तो यू हैव टू गो टू मोनोग्राफ। इट इज़ अ काइंड ऑफ बुक जिसमें आपको रिटन डिटेल्स मिलेंगे ऑफ वन टैक्सॉन, जिसमें आप लोगों को वन टैक्सॉन की सारी डिटेल मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इज our last taxonomy दैट इज कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, इट इज़ अ कैटलॉग, आप लोगों को पता है ना कैटलॉग कैसा होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंडेक्स ऑफ नेम। आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखेगा, नेम ऑफ स्पेसिमेन, क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन, आप लोगों को नेम ऑफ स्पेसिमेन दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट। मैं आप लोगों को फिर से कीज़ को एक बार पढ़ाना चाहूँगी। देखिए कीज़ आर की टैक्सोनॉमी, की हैव स्टेटमेंट्स होंगे, statements are in pair known as couplet, yes. Individual statements are called lead, yes. Two lead of one couplet are contrasting, yes or no. So we accept one and reject another. Each lead goes on to another or end on taxon. Keys is based on similarity and dissimilarity. Keys are analytical in nature. Each taxonomy category have different keys. ठीक है, देन अवर नेक्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा में हमें क्या दिखेगा, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट देखेंगे हम, प्लांट स्पेसिमेन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होगा, एंड इट्स अ काइंड ऑफ इंडेक्स, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। लेकिन कैटलॉग क्या है, नेम्स ऑफ, इट्स अ इंडेक्स बट नेम ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, देन यहाँ पर आप लोगों को मैनुअल्स में आप लोगों को मोर डिटेल्स देन फ्लोरा दिखेंगे। इट इज़ ऑल्सो एरिया वाइज, मैनुअल भी एरिया वाइज है, फ्लोरा भी एरिया वाइज है। आप लोगों को मैनुअल्स हम आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। देन मोनोग्राफ को हम देखते ही बोल सकते हैं, इट इज़ अबाउट डिटेल्स ऑफ वन टैक्सॉन। देन नेक्स्ट इज आवर लास्ट दैट इज कैटलॉग, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ नेम ऑफ स्पेसिमेन। नाउ वी विल लुक टू NCERT। क्या आप लोग NCERT में फिर से क्या आप लोगों को NCERT की कोई डाउट है, लेट्स सी। देखिए की इज़ अनदर टैक्सोनॉमी केड, यस टैक्सोनॉमी केड है, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड animals based on similarities and dissimilarity, yes. The keys are based on contrasting characters, generally occur in a pair called couplet, yes. It represent the choice made between two opposite options, yes. opposite options है, contrasting है, हमें एक को एक्सेप्ट करना है एंड दूसरे को रिजेक्ट करना है, दो स्टेटमेंट को हम कपलेट बोलेंगे। देयर इज की एंड ईच स्टेटमेंट इज लीड, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अनदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species for identification purpose. Keys are generally analytical in nature. क्या आप लोगों को कोई डाउट है ये वाले NCERT के पेज पे? ठीक है, प्लीज़ बोलिए आप लोग। Then flora, manual, monographs, catalog are some other means of recording description. Yes or no? They also help in correct identification.
Flora, account the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. Then देखिए, these provide the index to plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for identification of name of species found in an area. Yes or no? Then देखिए, monographs contain information of any one taxon. So with this we have completed our living world का lecture number 3. We have completed our taxonomy gates completely. हम taxonomic हम taxonomy में स्टेप्स में हम कैरेक्टराइजेशन कंप्लीट कर चुके हैं. देन हम आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं. आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हम टैक्सोनॉमिक एड्स भी कंप्लीट कर लिए. टैक्सोनॉमिक एड इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हम अच्छे से एनसीईआरटी भी देख लिए. मैं आप लोगों को क्या है हर्बेरियम क्या होता है बताइए, हर्बेरिया शीट्स कैसे होते हैं बताइए, इंसेक्ट बॉक्सेस क्या होता है बताइए, जूस एवरीथिंग इज़ डन. सो देखिए जितना हो सकता है मैं आई एम पुटिंग माई एफर्ट फ्रॉम माई साइड. आई वॉन्ट यू पीपल टू पुट योर 110% towards ready. That is okay. That's it for today. We have completed our class. मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस लेकर आऊँगी. सो प्लीज़ वेट फॉर इट एंड डू योर प्रैक्टिस. आप लोग भी आप लोगों की ओन प्रैक्टिस भी करते रहिए. सो विद दिस लेट्स एंड अवर लेक्चर. ओके, बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गुड बाय. सो प्लीज़ one more time, FDs before leaving from the class, why we are here. Yes, we are working to achieve the dreams. Yes, with this, bye bye. Take care.